Hi, today I'm going to review the project by the name Satwa. कोई specific reason है इतने सारे color use करने का? अगर lobby area ऐसा है, तो club house कैसा है फिर? What? This is the servant room? अरे master bedroom तो खत्म ही नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा है. This is music to the ears of home buyers. मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई compromise हो गया होगा, but Hi, today I'm going to review the project by the name Satwa Aqua Vista. This is in south of Bangalore. I'll go inside and I'll try to cover all the possible details, what all amenities are there, what kind of flat sizes are there, what would be the price point. I'll try to show you the clubhouse, the entrance, everything. So let's stick to this video till the end, and in case you have any interest in this project, you can watch this complete video to know all the details about this project. So let me turn the camera and show you the project, and let's meet the employees of Satwa. Akash ji, hi, how are you? I'm fine sir, how are you? All good, all good. क्या प्रोजेक्ट है ये? एंड प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, रिव्यू शुरू करने से पहले, विल नॉट मेक दिस वीडियो अ सेल्स वीडियो. ओके, हम इसको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे. आई वांट टू नो ईच एंड एवरी पॉसिबल डिटेल्स अबाउट दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम यू. sure. So this is what you can see over here. This is Satwa Aqua Vista. ओके This is in Banagatta Road. ओके. So you can say this is in the middle of Kalena Agarhara Lake on your left hand side. यहाँ पे लेक है. हाँ. ओके. So which I'll show you later. And Decathlon in Banagatta Road. अच्छा, ये बिल्कुल डीकैथलॉन के पास है. Exactly. एंड आई कैन सी यू हैव यूज्ड लॉट्स ऑफ कलर्स हियर. Exactly. कोई Yes. स्पेसिफिक रीजन है इतने सारे कलर यूज करने का? अंदर भी इतना कलरफुल होगा? Yeah, it is. It is pretty much the same because this is one of our theme of Satwa builders All right. to make it more, charismatic and colorful. All right. Yeah. So this is the main entrance gate of yours. Yes. Okay. So you have a separate entry and separate exit point. Exactly. Yes. And as you can see over here, this is directly on the main road. Okay. So this is your main entrance. Yes. One more thing which I have noticed here is you have a main road. Yeah. Then you have a service lane also. Exactly. Yes. And then after service lane your property is there. Yes, and Now- one more thing which you can show over there is Okay. that there is a hospital just 200 meters away on your left hand side. ये left वाला. Yes. So it is walking distance. God forbids, but in case of any emergency, the residents can use that hospital. Exactly. It's a functional hospital. Yes, it is. Okay. So this project Aqua Vista, this is registered in RERA. Yes, it is. And what is the delivery timelines? Delivery timeline you will be getting in somewhere around December 2023. Building तो almost सारी complete हो चुकी है. Yeah. But So December 23. but we want to make it each and everything perfect and polished before handing over to you. All right. Yeah. But what I have known about Satwa that they deliver before time. So is it possible that you'll deliver this project before December 2023? It might happen two or three months here and there. Yes. All right. Great. So ये आपका main entry point है. हम यहाँ से अंदर चलेंगे, right? Please, yes. And if I can see, आपने वहाँ पे भी बोर्ड लगाया हुआ है सत्वा का. Yes, it is. Satwa Aqua Vista, yes. Okay. So ये मुझे बेसमेंट में जाने का रास्ता लग रहा है. ये बाहर निकलने का रास्ता है, right? Because Yes. this is your exit gate. Yes, exactly. Because the project is designed in a way that the car directly goes on the basement. Okay. And on these areas, the cars won't be roaming around because the children will be playing Right. for their safety. Or the elders would be Yeah, walking. going for a morning walk. All right. Yeah. And with the boundary wall of yours, Yeah. यहाँ पे सारा वो green area होगा. Exactly. Okay. All the plantations and everything will be done over here. All right. And why this ramp is there? जब आपकी parking सारी वहाँ पे है, तो ये ramp क्यों है? Because it should be wheelchair accessible when you're Okay. So going your in. entire project is disabled friendly. Yes. Wheelchair friendly. Yes. All right. उस तरफ गेट से हमने एंटर किया था. एंड यहाँ पे ये छोटा सा एक सिटिंग एरिया सा दिख रहा है. ये क्या है? Here people, in the evening time or in the morning, they can just, it will be full of, as you can see, the plantation has been done. All They right. can sit and relax and, talk with their friends and At a later stage when the entire project would be ready, this will be further developed into a green area. Yes, yes. And the sitting area. Yes. All right. So this is the lobby area, right? यहीं से entrance है. जब आप Yes, गेट sir. से आते हैं, तो ये lobby area से आप enter करेंगे. Yes, correct. And this will be the entrance for all the three towers. All the three towers, yes, in one Okay. lobby. It मैं will be एक connected. बार ऊपर आपको दिखाता हूँ. I think ये क्या है? ये swimming pool वाला area? Yes. So they'll have infinity view. Yes, Okay. I think this is facing towards the lake. yes, it is. All right. And this is tower number? This is tower number B. This is tower number B. Yeah. The middle one is C, that is A. C and this is A. Correct. All right. Okay. तो हम अंदर चलते हैं. Please. I think you have a very grand entrance. Yes, it यहाँ is. पे भी. Because it is our, the luxury segmented project over here. Okay. And everything, from the staircases to the flooring, each and everything are in the same level. This looks very grand. एक बार मैं इधर घूम के भी दिखाता हूँ. Please. देखिए कितना बड़ा एंट्रेंस है ये. Superb. मेरे पीछे भी इतनी बड़ी जगह है. All right.
Is this a clubhouse or your lobby area? This is a lobby area. This is the lobby area. Yeah. अगर लॉबी एरिया ऐसा है, इतना, जैसे मैं यहाँ से दिखाता हूँ पहले आपको, देखिए ये पूरा लॉबी एरिया यहाँ से शुरू होता है एंड इट गोज अप टू दैट एंड और यहाँ तक आता है. अगर लॉबी एरिया ऐसा है तो क्लब हाउस कैसा है फिर? जाके देखेंगे. ओके. यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपके 4 प्रोजेक्ट्स के नाम लिखे हैं. Yes. ये क्या है? These are the 4 projects, our newly launched Sadhva Aeropolis, which is just beside the new. And we Bangalore are at airport. Aqua Vista. Yes, correct. All right, and this is Green Edge. This is our, one of our landmark projects. all right. In Bangalore. So I've covered all these projects. Misty Charm भी बहुत अच्छा project है. Yeah, it's just 5 kilometers away from here. All right. Okay. यहाँ पे configurations क्या हैं? Configurations यहाँ पे 1976 square feet से शुरू होता है. Okay. So, which means कि on सारे an- 3 BHK वाले ही हैं. Only 3 BHKs on an average. वो यहाँ पे maximum dimension 1850 तक ही आता है. Okay. But our lowest is bigger than the average dimension over here. All right. एक बार ये पूरा घूम के देखिए कि क्या है ये, बहुत खूबसूरत Please. लग रहा है. So आप देख सकते हैं B टावर वहाँ पे होगा, A वहाँ पे होगा, C आपके ये सामने. मेन कॉमन लॉबी एरिया है. हाँ. And the best part is you can see the floorings which we have used This looks right from very the lobby. premium. Yeah. जो बैंगलोर में बारिश बहुत होता है. Yes. Right? Yes. एंड ये जो आपने फ्लोरिंग या टाइल्स जो यूज Yes. किया है, Yes. इसमें लोग स्किट तो नहीं करेंगे, बाहर से पैदल आ रहे होंगे और यहाँ Not पे at skid all, कर रहे हैं? because when you're entering over here, those are anti-skid tiles. All right. Okay. Superb. एक बार यहाँ से एंड तक चलते हैं. This is a very big lobby area Yes, it is. and very beautifully made. ये सब जो खाली space है, will this be converted into a sitting space? Yeah. Obviously, because once the project is done, as you can see, the sofas have already been put over there. Okay. Few of them. So this will be kind of a waiting lounge. Exactly. For our, because it is a luxury segmented project, All right. and so that even if the delivery boy also comes, they don't have to just stand and wait for you. Right. They can just have a seat. All right. Even the guest or the residents are not here. Yeah. The guests can come and And wait here. yeah, it's like a waiting lounge over here. All right. बहुत बड़ा है. एक बार मैं एंड तक चलता हूँ. पूरा एंड दिखाता हूँ आपको. What are these doors for? ये दरवाजे यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे, ये यहाँ पे. This will be going again on the different towers. All right. This is a lift area. Yes, it is. So every tower would have how many lifts? 2 lifts. And these 2 lifts are stretcher size lift? One will be stretcher, one will be a normal lift. public seat. Okay. Yeah. And ये आपके. These are the letter boxes, as you can see. Okay. So ये look and feel होगा, बहुत प्यारा लग रहा है. अगर आप थोड़ा ऊपर भी देखेंगे, even the artificial ceiling has been done properly. हाँ, fall ceiling has been Yes. done. I think जब और सारी चीजें फर्नीचर्स यहाँ पे आ जाएंगी तो ये बहुत अच्छा लगेगा. Yeah, it will have a more grandeur look. Yes. तो अब हम कहाँ चलेंगे? अब हमको आपको लेके जाएंगे sales office, marketing office, All right. and there we'll talk about the project more in depth. All right. तो मार्केटिंग ऑफिस चलते हैं और डिटेल में जानते हैं सब कुछ. बहुत प्यारा बनाया आपने, मतलब जो लुक एंड फील आ रहा है ना, दिस इज वेरी रिच. कलर्स भी आपने कॉम्बिनेशन. Right now we are in an under construction stage. Yes, so you can imagine how it will be when everything will be done. यस. सो ये आप मेन टावर B में है. बी में एंटर कर जाते हैं एंड देन यू हैव द लेटर बॉक्स हियर टावर बी के लिए. दिस इज ओनली फॉर टावर बी. Correct. एंड ये जो लिफ्ट है ये Tower टावर बी के लिए लिफ्ट है. ऑलराइट. सिंस लिफ्ट्स आर नॉट फंक्शनल अभी, Yeah. कब तक ये लिफ्ट भी फंक्शनल हो जाएंगे? Maybe in a couple of months. ऑलराइट. Yeah. Okay. So then you have 2 staircases. Yeah, that is connecting to the basement, Okay. and this one will take you to the apartment. All right. Yeah, and you can see the flooring over here. There is an anti-skid flooring. This which has is been wide done. enough, yes. And Yeah. So Okay. इस प्रोजेक्ट का USP क्या है? USP is, sir, as I had told you earlier, that the major sizes of the apartments comparatively. So this has larger size. जहाँ पे Exactly. बाकी सारे प्रोजेक्ट्स के साइज खत्म हो जाते हैं. Exactly. यहाँ से शुरू होता है. Exactly. तो ये अमिताभ बच्चन है बाकी प्रोजेक्ट्स का. हाँ. All right. So we are at first floor now. Yes. Okay. I can see the room sizes here. Exactly. So as So you हम can, पहले रूम साइजेस देखेंगे. हम पहले मास्टर प्लान जानते हैं सारा कुछ. Okay. उसके बाद रूम साइजेस में आते हैं. Before entering the
Sample flat. Yeah. This is your marketing office. Yes, it is. Okay. As you can And see, this Sadhva. looks very beautiful in the green background. Yes, it does. Great. All right. So this is also one of your sample flat. Only. Yes, it is. ना इसको अपने ऑफिस में कन्वर्ट कर Correct, लिया. yes. Okay. मास्टर प्लान मुझे यहाँ पे दिखा है. हाँ, सबसे पहले मास्टर प्लान देखेंगे. देख लीजिए. So this is the. I'll just explain you about the whole project All right. in depth. This is the Banagata main road. Okay. We started taking the video right over here. यहाँ से हमने शुरू किया था. Correct. All right. So this is the entry and exit, and this is the basement going ramp down, and there's the ramp which I. ये Which तो I एग्जिट वाला रैंप था, राइट? कौन सा? एंट्री वाला रैंप कहाँ है? entry exit is. अच्छा, also- एंट्री एग्जिट वही है. Yeah. Okay. So the entry ramp. Remember, I told you it was designed in a way that is wheelchair accessible. Right. So this is completely what you see over here is a 2.89 acres project Okay. consisting of 181 boutique apartments. Only 181 Only apartments are 181 here. So in that 2.8. means this is a low density project. Correct. Okay. So And in bigger a- apartment size. So in any kind of Sadhva projects where you go, there's always we give focus on the amount of space which we are utilizing. Okay. So as you can see here, there are 3 towers A, B, and C, All right. and totally each and every floor there will be only 4 apartments. Okay. 4 कॉर्नर में होगा. ठीक है. Amenities क्या क्या है यहाँ पे? और यहाँ पे जैसे आपको बोला था 1976 स्क्वायर फीट मिनिमम स्क्वायर फीटेज है. जी. And it goes up till 4,200 square feet, which will be the penthouses duplex. So you have penthouses also. Yes. So we have combination of apartments, we have combination of duplex here, Yeah. and we have combinations of penthouses. The here. duplexes are penthouses. The duplex are penthouses only. All right. Yeah. कल मैंने एक आपका प्रोजेक्ट कवर किया था मैग्निफिसिया. Yeah. And the penthouse was awesome. And Yes, the they view are. was awesome. Yeah. Zabardast view. It is actually again one of the luxury segmented projects of Sadhva. Okay. Yeah. जी. तो अगर आप what you see over here are the completely the outdoor amenities. Okay. So number 2, what you see over here is the forecourt. Okay. तो ये क्या होगा? This will be a small court where it will be filled with greeneries all around you. All right. And this is just next to your, Pool area. when you're just coming down from your apartment, just opposite to that. Okay. So in the evening or on your spare time, you can sit around with your friends. It's more of a nature away from your home concept, Okay. and and talk about various things. All right. So what is number 3, number 4, and Number 3 is the amphitheater over here. all right. Or number 4 is the open gymnasium. So you have open gym and you have closed gym as well. Open gymnasium you'll find in around 90% of our projects. Okay. Number 5 is your multipurpose court. All right. Number 14 is a thematic garden. Thematic garden Yeah, is there. yeah. All right. And number 8 is your cricket pitch. All right. And this amenities which you are seeing just in the middle, Okay. this everything will be there on the 3rd floor. So which means what all amenities? Both the swimming pools will be Okay. there on the 3rd floor. This is the pool deck area. All right. The children's play area will also be there on the 3rd floor. Okay. Completely. And this is a small yoga area. So we'll be able to going today and seeing the these की third floor में क्या क्या amenities हैं? Surely I'll show you. All right. I'll also record these. ये जो legends में आपने लिखा है. Please. So you have entry exit points, 4 courts, amphitheater, open gym, multi-purpose gym, DG yard, transformer yard, 4-wheelers, parking, cricket, pitch, children's play area will be on 3rd floor, pool deck is on 3rd floor, then pool is on 3rd floor, kids pool is on 3rd floor, yoga, gazebo and thematic garden. All right. So I think you have covered everything. इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आपने लिखा ही नहीं है यहाँ पे. Yes, the indoor amenities, everything will be there on the 3rd floor. All the blocks combined. So badminton court भी है what I know. Squash court, badminton court. वो आपने नहीं लिखा है यहाँ पे. नहीं. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं लिखी हैं. Exactly, मुझे उनके yeah. बारे में भी जानना है आपसे. आपको सब डिटेल में बोल देंगे अब. All right. Yeah. ये क्या है यहाँ पे इतने सारे posters? These are ongoing projects. What you can see over here of Sadhva Builders. All of them are ongoing projects or Yes. couple of them are completed also? Couple of them are completed also and Oh, I can ongoing see also. Exotica I have covered. I have covered Park Cubics. I have covered Anugraha. This one I haven't covered till now. Magnificia I have covered. Aqua Vista में तो हम already हैं. What is Kaveri Shiri is a plotted development. It's in Mandya. Okay. Greenage हमने नीचे देखा था. Luxuria. It's a luxury project, right? Yes, it is. All right. Serene Life I have covered. It's a plotted project. Divinity I have covered. Misty Charms I have covered. Ashraya I have covered. Almost सारे cover कर लिए. Opus भी है यहाँ पे. So if you want to look at on the Bangalore map,
जी. which comes where our projects All right. which is stated over here. सुपर. आप एक बार एक्सप्लेन करोगे ये पूरा प्रोजेक्ट, मतलब ये पूरा मैप आप एक्सप्लेन करोगे please? Yeah. So consider as if I am a layman, I do not know anything about Bangalore. Now you have to explain me entire thing so that I want anybody new to Bangalore who is watching this video should get entire idea. And these are the list of your ongoing residential and commercial projects. Correct. Yeah. Let me just have a closer look at it. Residential projects left में है, commercial projects right में है. These two are ongoing projects. 17 ongoing projects हैं. And 4 projects are commercial which are ongoing. Okay. And ये सारे completed हैं. हाँ. 50 projects, commercial projects you have completed Yes, already. only in Bangalore. And these are functional. Yes. Plus there are commercial projects in Hyderabad as well. So आपके यहाँ पे 50 तो commercial projects हैं. Yes. 4 are ongoing projects, right? Yeah. 17 projects here are ongoing. Yes. ये completed या residential completed projects are 31, 31, yes. right? Delayed कितने थे इसमें से? None, because our planning and our service is like that it never got delayed. Okay. And it's always on time or before time. Superb, superb. और प्लीज मुझे ये मैप जानना है आपसे. तो जैसे आप देख सकते हैं, it is already shown over here the north, west, south and east of Bangalore. So ये ऊपर वाला नॉर्थ बैंगलोर है. Correct. दिस इज योर वेस्ट बैंगलोर. दिस इज योर ईस्ट बैंगलोर और एंड south. दिस इज योर साउथ बैंगलोर. Yes. हम कहाँ पे है इसमें? हम लोग अभी यहाँ पे हैं, नंबर 16 में है, नंबर 16 Aqua Vista, which is Okay. in South Bangalore. ऑल राइट. क्या क्या चीजें यहाँ पे आसपास है साउथ बैंगलोर में? South एंड एनीबडी हु इज इन्वेस्टिंग हियर और बाइंग फॉर एंड यूज, क्यों लेते हैं वहाँ पे, क्यों घर ले रहे हैं? Because one of the main factors of buying over here is this property is directly on the main road. ऑल राइट. And over here only you can see the IIM is just couple of kilometers away from here. ओके. यहाँ दिस पे इज आई एम बैंगलोर. that is IIM Bangalore. Correct. ओके. जहाँ पे आपका 3 Idiots शूट हुआ था. जी जी. और यहाँ पे the nearest mall is just 1 kilometers away called Meenakshi Mall, ओके. जो आपका मीनाक्षी टेम्पल के जस्ट ऑपोजिट में होगा. ऑल राइट. है. टेंपल भी यहाँ पे मीनाक्षी मीनाक्षी टेम्पल इट्स वन ऑफ द देन मोस्ट. यू आल्सो हैव अ लेक. यस. हॉस्पिटल भी है पास में. यस. स्कूल कॉलेज तो दिख गया मुझे. आई एम स्कूल यहाँ पे आपका ग्रीनवुड हाई स्कूल है, जो हम लोगों का खुद का है, ऑल राइट. सदवा बिल्डर्स का. ग्रेट. स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मंदिर हो गया, मेट्रो स्टेशन. मेट्रो स्टेशन अभी जस्ट 1 kilometer away from here. फ्रॉम द मेन गेट इट इज 1 किलोमीटर Correct. अवे. सो मेन गेट से अगर हम बाहर निकलते हैं, 1 kilometer लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में 1 किलोमीटर. Yeah. कोई और भी है यहाँ पे मेट्रो? मेट्रो अभी यहाँ तक है, बाद में ये घोटीगेरे तक आएगा. द मेट्रो विल बी गोइंग जस्ट फ्रॉम जस्ट बिसाइड योर अपार्टमेंट. सो जिस मेन रोड पे हम खड़े थे वहाँ पे. उसी के सामने से मेट्रो जाएगी. यस. ऑल राइट. आकाश जी, जो ऑलरेडी मेट्रो स्टेशन आपका 1 किलोमीटर पहले बन रहा है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में ही है. कुछ Correct. काम बचा हुआ है उसमें. सो अगर वो बन जाता है तो मेट्रो की कनेक्टिविटी कहाँ तक हो जाएगी? आपका मजेस्टिक तक चला जाएगा सर ये डायरेक्ट. और मजेस्टिक में आपका मेन जंक्शन है मेट्रो का, विच इज bifurcated to different part of Bangalore. All right. And what about the IT hubs from this place? IT hubs, see in Banagata Road there are many IT hubs. आपका Accenture है, सब कुछ यहाँ पे भी है. But if you're talking about electronic city, that will be hardly 4.5-5 kilometers away from here. Just 4.5-5 kilometers from here. Yeah, it is over here as you can see. Okay. Now I've understood this plan. I want to know कि जो यहाँ पे buying कर रहे हैं आपके सोसाइटी में, वो कौन लोग हैं? Generally it is people from the various IT hubs which are just nearby. Okay. उसको आपका hospitals है. Okay. Also there are many old properties in Banagata Road. All right. People who wants to move into a new property with more amenities to All right. have more of a luxury statement on So their normally life. they have individual houses wherein they want to move into a luxury place. Exactly. And in a gated community. Yes. All right. Superb. तो हमने एंट्री देख लिया, आपका मैप समझ लिया, आपका मास्टर प्लान समझ लिया. अब आप क्या दिखाने वाले हैं? मॉडल अपार्टमेंट दिखाएंगे. मॉडल अपार्टमेंट दिखाते हैं. ठीक है, चलिए मॉडल अपार्टमेंट भी देखते हैं. सो हमने सब कुछ समझ लिया. अब मैं यहाँ से बाहर आया हूँ आपके मार्केटिंग वाले ऑफिस से, एंड आई कैन सी बोर्ड में अलग अलग डायमेंशंस लिखे हुए हैं आपके. आप एक बार एक्सप्लेन कर देंगे साइजेस? श्योरली. 2250 स्क्वायर फीट जो है वो हम लोग का मॉडल अपार्टमेंट होगा. ये 2250 स्क्वायर फीट का मॉडल अपार्टमेंट है जो हम देखने वाले हैं, इंक्लूडिंग अ सर्वेंट क्वार्टर. इंक्लूडिंग सर्वेंट क्वार्टर. ऑल राइट. एंड दिस क्या इसका साइज है, क्या है लेआउट? So the lobby is only, as you can see over here, is 12 by 2 by 7.6. ऑल राइट. The size of the lobby area. ओके. The living is 11 by 6 by 19.8. As you can see how big it is. The Right. dimensions. आपका guest bedroom is 12.2 by 11.6. ओके.
The kitchen is 8.10 by 11 by 10 and the utility is 7.3 by 6.1. ऑल राइट. And the main factor, you have to look at the size of the servant area. ये तो मैप में है बट अंदर जाके भी देखेंगे. This काफी is बड़ा लग रहा है. 9.6 by 8 by 11. ऑल राइट. That's, you know, on an average size of a bedroom. ओके, सो इन दिस वन जो 2250 स्क्वायर फीट का है, राइट? सो इसमें हमारे को कितनी बालकनीज मिलती है? दो बालकनी मिलती हैं, 3 बेडरूम मिलता है, Yes. 3 टॉयलेट मिलता है, Yes. विद सर्वेंट रूम मिलता है, किचन एंड डाइनिंग एंड लिविंग एरिया. Plus washroom for the servant quarter also. वॉशरूम बेसिकली 4 वॉशरूम हो गया Yes. ऐसे तो. ओके, एंड ये क्या है, कौन सा साइज है? This is 2242. Again, this is the same configuration of the 2250. Okay. The only thing difference will be your servant area over here. ओके, सर्वेंट And- एरिया इसमें अलग हो जाएगा थोड़ा सा. And little bit of the lobby area. ऑल राइट. मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सामने दरवाज़ा है Correct. और यहाँ पे भी सामने दरवाज़ा है. Correct. ये तो ठीक चीज़ नहीं है. सर ये आपका लॉबी एरिया है ना, ये आपका वॉल आता है. अच्छा, यू मीन टू से कि प्राइवेसी इज टेकन केयर ऑफ. Yes. दरवाजा सामने है लेकिन जब दरवाजा खुलेगा तो पूरा घर नहीं दिखता है. Exactly. आई कैन सी माई सेल्फ ओनली स्टैंडिंग देयर इन द मिरर एंड यहाँ पे आई कैन सी अ वॉल हियर. ओके, So what you will be seeing is maybe just the shoe racks ऑल राइट. and the furnitures. जी जी. ये क्या है, बहुत बड़ा सा लग रहा है होम थिएटर ये. This is the same apartment जहाँ पे हम लोग थे, marketing office. ओके, So the home theater itself is around 400 square feet. 400 स्क्वायर फीट का होम थिएटर, ये भी देखूंगा, ये मिस हो गया देखना. Yeah. पहले हम ये मॉडल अपार्टमेंट पूरा देख लेते हैं एंड देन हम ये होम थिएटर भी देखेंगे. ओके, सो होम थिएटर इनसाइड हाउस. Yes. सुपर्ब. बाकी सब कुछ सेम है. Yes. ऑल राइट. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप होम थिएटर रूम ले लेते हैं यहाँ से जी. तो इट बिकम्स 1976 स्क्वायर फीट विच इज ऑल लोएस्ट डायमेंशन. ओके, सो सिर्फ अगर ये पार्ट कट जाता है, यहाँ से इसको हम हटा देते हैं हाँ तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा. हाँ. राइट. ओके, सो दिस इज योर स्मॉलेस्ट डायमेंशन Yes. अपार्टमेंट विच इज 1976 स्क्वायर फीट. Yes. ऑल राइट. एंड 2 दरवाजे मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे एंड आई कैन ऑल्सो सी कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स आपने ऊपर तक लगाए हुए हैं. Correct. राइट. तो ये सारे फ्लोर में होगा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स Yes. Even inside the apartments. इनसाइड द अपार्टमेंट्स Yes. ऑल्सो. ओके, सो अब आप पहले क्या दिखाने वाले हैं, मेन घर या सर्वेंट रूम से शुरू करें, कहाँ से? आप पहले ये देख लीजिए because Servant it is- room से. it is one of our unique things in All this right. project. Just सो ये मेन डोर है एंड ये सर्वेंट रूम है. सो सर्वेंट रूम में एंटर करते हैं. व्हाट, दिस इज योर सर्वेंट रूम? yes sir. दिस इज लाइक कई अपार्टमेंट्स में ये इतना बड़ा गेस्ट रूम होता है. सुपर्ब. ये वॉशरूम भी है यहाँ पे साथ में Yes. एंड वॉशरूम हैज ऑल्सो, दिस इज अ बिग वॉशरूम. Yes it is. नॉर्मली सर्वेंट रूम में तो इतना ही बड़ा देते हैं यहाँ Yeah. तक का. And they provide Indian toilets in that. यस, And over here दिस डजंट लुक लाइक सर्वेंट रूम. that's why I had brought you here first. राइट. ये खैर यहाँ पे ये पोस्टर लगा हुआ है बट दीवार यहाँ पे. सो ये वॉशरूम का साइज क्या है? It is 7 by 10 by 6.3 sir. 7 by 10 फीट बाई 6.3. 6.3 फीट. Yeah. सुपर्ब. एंड इसके ऊपर फॉल सीलिंग एंड फॉल सीलिंग के ऊपर गीजर का प्रोविजन भी होगा. Correct. ऑल राइट. एंड इवन इसमें जो टाइल्स आपने दिए हैं, anti-skid tiles. एंटी-स्किड टाइल्स. Yeah. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस सर्वेंट रूम. बड़ा है ये काफी. ये आपका वेंटिलेशन के लिए दिया है, दो विंडोज हो गई है. मैं अब यकीन से बोल सकता हूँ ये सर्वेंट रूम नहीं है. इतनी बड़ी विंडो नहीं होती है सर्वेंट रूम में. करेक्ट सर. जी. इसलिए आपको यहाँ पे पहले लेके आया था. वेरी नाइस. सो अब हमने सर्वेंट रूम देख लिया, अब हम मेन एंट्री करने वाले हैं. मेन एंट्रेंस से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये क्या बॉक्स जैसा लगा हुआ है. This is for the video con which will be coming later. ऑल राइट. सो वीडियो फैसिलिटी, कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी भी यहाँ पे है. ऑल राइट. सो द हाइट एंड विड्थ ऑफ द डोर इज गुड इनफ. Yes. कोई भी फर्नीचर इजीली चला जाएगा. Exactly, and even for God forbid, even during times of emergencies, people can move Bring out. the stretcher inside easily Exactly. and move out easily. Yeah. Yeah. Very valid point. Yeah. ओके. एंड ये वो एरिया है जब आप दरवाज़ा खोलते तो दिखता है. सामने हम दोनों आपको दिख रहे हैं. हाय. ओके. सो दिस कुड बी अ शू रैक रूम और अ फॉयर एरिया, The किसी foyer तरीके से area, भी yes. यूज़ कर लें इसको. ऑल राइट. सो फ्रॉम द फॉयर एरिया दिस इज द लिविंग एरिया. Correct sir. ओके. क्या साइज है लिविंग एरिया का? Living is 11.6 by 19.8. ऑल राइट. एंड दिस इज द डाइनिंग एरिया. Correct sir. आपके लिविंग एरिया से भी बड़ा डाइनिंग एरिया है. Yes sir. That is 17.7 by 9 by 10 फीट. feet. ऑल राइट.
एंड देन दिस इज योर किचन. kitchen. Yeah, kitchen and utility. एक बार मैं यहाँ पे ना चारों तरफ घूम लेता हूँ. सो वो दरवाजे से हमने एंटर किया था. दिस इज वन ऑफ द बेडरूम. विल गो इनसाइड हियर. ये सामने दिस इज द लिविंग एरिया. लिविंग एरिया के साथ यू हैव अ बिग बैल्कनी. अभी हम बैल्कनी भी देखेंगे. एंड देन दिस इज द डाइनिंग एरिया यहाँ पे. एंड दिस इज किचन. आई मस्ट से बहुत अच्छे से प्लान किया है आपने. Yes, it is, sir. ओके तो पहले बालकनी देखते हैं. ये जो डोर्स और विंडोज है यहाँ पे, मुझे इसमें मॉस्किटो, अच्छा दिख गया मॉस्किटो मेश. सो मॉस्किटो मेश का प्रोविजन आपने दिया हुआ है ऑलरेडी. नहीं, हम लोग देते हैं मॉस्किटो में. बाय डिफॉल्ट आपके सारे प्रोजेक्ट्स में ये होता Yes. है. ओके एंड ये यूपीवीसी फ्रेम्स हैं. Yes, sir. एंड दीज आर टफ एंड ग्लासेस. Yes. ऑलराइट. ये बालकनी का साइज क्या है? 11.6 feet by 6.3 feet. ऑलराइट. एंड वहाँ से हमने एंटर किया था. Correct, sir. मैं वेट कर रहा हूँ हायर फ्लोर्स में जाने की, जहाँ से लेक, मैं यहाँ से भी फर्स्ट फ्लोर से भी लेक देख सकता हूँ. लेक दिख रहा है उधर. ओके सो ये हमने बैल्कनी भी देख लिया. अब हम क्या देखने वाले हैं? बेडरूम दिख लीजिए. ऑलराइट. दिस इज विच बेडरूम? फर्स्ट बेडरूम है ये. Yeah. क्या साइज है बेडरूम का? This bedroom is 12.2 feet by 11.6 feet. ओके ये यहाँ पे आप देखिए बड़ा सा विंडो. एंड दिस इज द कंप्लीट बेडरूम. यहाँ पे कबर्ड लगाने के बाद भी बेडरूम इज बिग इनफ. एंड फ्लोर टू सीलिंग की हाइट क्या है? ये काफी ऊंचा दिख रहा है मुझे. Yes, sir. Floor to ceiling की height यहाँ पे 9.2 feet आएगा, sir. 9.2 फीट. Yeah. ओके सुपर. बहुत बड़ा रूम लग रहा है ये. एंड इसके साथ एक अटैच्ड वॉशरूम भी है. Yes, sir. ऑलराइट. That is 5.5 feet by 7.10 feet. ओके एंड ये वॉशरूम आप ऐसे ही देंगे या रॉ देंगे? नहीं, ऐसा देंगे. मिरर सब कुछ ऐसे ही लगा होगा. Without the mirrors. Okay. Whatever dado tiles, the flooring, the fittings, whatever you see, we'll be providing that. ऑलराइट. अगर मैं फिटिंग को नीचे से देखूं तो वो भी क्लीन है पूरा. ओके इसमें एक्सेसरीज आपने किस कंपनी के यूज करे हैं? हाँ, हम लोग देंगे Jaguar और Kohler. ऑलराइट. ओके तो ये वॉशरूम हमने देख लिया. इसमें गीजर फॉल सीलिंग के ऊपर है. Correct. और इसके गीजर के पॉइंट्स भी ऊपर ही मिलेंगे Correct. आपको. ऑलराइट. एंड मैं यहाँ पे एक स्विच पॉइंट देख रहा हूँ. यहाँ देन यहाँ पे एक स्विच पॉइंट देख रहा हूँ. ऑलराइट. पानी का फ्लो भी मेंटेन होगा पूरा? Completely, sir. ऑलराइट. सो हमने फर्स्ट बेडरूम देख लिया और हमने लिविंग एरिया देख लिया. हमने फॉयर एरिया देख लिया. डाइनिंग एरिया भी देख लिया हमने. सो लेट्स सी द किचन नाउ. काफी बड़ा किचन लग रहा है. Yes, क्या sir. साइज है किचन का? So kitchen is 8.10 feet by 11.10 feet. सुपर्ब. एंड वेरी वेल वेंटिलेटेड. इसमें भी पूरा लाइट है. हाँ, ये आपका यूटिलिटी एरिया आता है, सर. जी. यूटिलिटी एरिया 7.3 feet by 6.1 feet. सो यूटिलिटी एरिया को अगर हम किचन के एरिया के साथ ऐड कर देते हैं तो कितना बड़ा हो गया? Becomes more than 20 feet. सुपर्ब. सो ये पूरा सेक्शन ऐसे करके यहाँ तक, ये दिस इज द एल शेप किचन. ऑलराइट. एंड इसमें किचन में हमें क्या क्या मिलेगा? विल इट बी अ रॉ किचन या ऐसे ही बना हुआ मिलेगा? ऐसे ही the tiling work what you're seeing over here आपको सब मिलेगा, सर. ओके. But what you're seeing, the platform and the fittings, we are not providing that mainly because people have their own different colors they want. You know, they have their own. They have different heights also. Yeah, that Okay. is the whole reason for that. So we'll be getting the raw kitchen. Correct. Okay. But the tiling work with the dado tiles, you will be getting all of this. And I can see there are 2 windows in kitchen. Correct. एक यहाँ पे है Yeah. and एक वहाँ पे है. Yes. एग्जॉस्ट कहाँ लगेगा? आपने वो होल कहाँ दिया है? Exhaust वहाँ से जाएगा ना, सर. अच्छा वहाँ से. Yeah. All right. Okay. And after kitchen, this is the dining area, which we can see. Dining area का size dimension क्या बताया था आपने? Dining area का आपका size आता है 17.7 feet by 9.10 feet. All right. And dining area के साथ I can see a small space there. That is a puja niche area, sir. Very nice. So वहाँ पूजा रूम बन जाएगा. Exactly. लोग अक्सर ना मुझसे पूछते हैं whenever I record a review, so people ask me कि पूजा रूम दिखाओ, पूजा रूम क्यों नहीं बनाया बिल्डर ने? So now you can see here, यहाँ पे पूजा रूम का भी स्पेस है इस जगह पे. Very nice. And काफी ऊंचा तक स्पेस है. Yes. Okay. So ये डाइनिंग एरिया भी देख लिया हमने. What is this area? This area, there's one more window from it for more ventilation and light to come in. Okay. So cross ventilation is very easy Yes. in this apartment. So किचन में भी दे दिया आपने, बालकनी का भी है, then यहाँ पे भी है. Yes. All right. And then we have the second bedroom. Yes, sir. Second bedroom का size क्या है?
सर आपका सेकेंड बेडरूम होगा समर 11 फीट बाई 12.10 फीट. 11 feet by 12.10 feet. Yes. So I can also see that there is a niche here for the wardrobe which you have utilized as a study table. Yes, sir. यहाँ पे. So this is the kids bedroom, I'm assuming. Yes, it is. All right. Okay. And इसमें भी आपने UPVC की frames and tough in glasses दिए हैं, plus you have a mosquito mesh here. Yes. All right. So बाहर जाने से पहले मैं एक बार आपको एक राउंड लेकर दिखा देता हूँ. ये पूरा किड्स बेडरूम हमने देख लिया. There is a wardrobe here. अगर आप चाहें तो वार्डरोब हटा भी सकते हैं यहाँ पे. एंड दिस इज़ अ फेयर एनफ बिग साइज वार्डरोब. इसकी जगह वार्डरोब आप यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं. दैट्स अप टू यू. एंड अब हम चलते हैं मास्टर बेडरूम देखने. ओके, सो मास्टर बेडरूम के पहले देयर इज अ कॉमन वॉशरूम ऑल्सो हियर. यस सर. ओके, इस वॉशरूम का साइज़ क्या है? सर ये वॉशरूम आपका लगभग 5.5 फीट बाई 7.10 फीट आएगा सर. ऑल राइट. इसमें जैसे चीज़ें दिख रही हैं मुझे, सिंक लगा हुआ, यस. WC लगा हुआ, एक्सेप्ट मिरर एंड लाइट्स. यस. फॉल सीलिंग ऐसे ही होगा. गीजर पॉइंट ऑलरेडी है वहाँ पे. यस. ऑल राइट. तो हमने कॉमन वॉशरूम भी देख लिया, हमने सेकंड बेडरूम भी देख लिया, किड्स बेडरूम देख लिया. नाउ वी आर एंटरिंग इन दी मास्टर बेडरूम. ओके, मास्टर बेडरूम का साइज क्या है? अरे मास्टर बेडरूम तो खत्म ही नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा है. हाँ सर. मास्टर बेडरूम अब आपका 11.10 फीट बाई 13.7 फीट आएगा. 11.10 feet by 13.7. 13.7 feet. Yes sir. All right. And this is a walk-in wardrobe. Yes. area. And with a balcony. Yes. Attached balcony. क्या साइज है balcony का? तो देख लीजिए सर पहले एक बार. जी. balcony होगा सर आपका 9.4 फीट बाई 4.11 फीट. All right. And अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस मास्टर बेडरूम में, तो एक तो वेंटिलेशन के लिए balcony है यहाँ पे. दूसरा आपने यहाँ पे विंडो भी दिया हुआ है वेंटिलेशन के लिए. यस सर. ओके, एक बार लाइट ऑफ करके देखें कितनी लाइट है. प्लीज. आपने लाइट ही क्यों लगाया हुआ है? इसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पे. एंड दिस इज द फर्स्ट फ्लोर, इमेजिन. यस सर. वेरी गुड. एंड दिस इज द वॉकिंग वार्डरोब. आप मुझे शीशे में देख सकते हैं. एंड इसके साथ यहाँ पे ये वॉशरूम है. सो दिस वॉशरूम हैज अ ग्लास पार्टीशन बाय डिफॉल्ट. No, we are not providing that. It is over here like this because it is in a model apartment. ओके, क्या साइज है इस वॉशरूम का? तो वॉशरूम साइज 7.10 by 5.5 फीट. यस. ओके. एंड इसमें ये जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने एक अलग सा स्पेस बनाया हुआ, ये ऐसे ही होगा सारा कुछ? यहाँ पे आपका नॉर्मल डैडो टाइल्स जो रहता है, जो दूसरे वॉशरूम में हम लोग देखे थे जी, वैसा रहेगा. ऑल राइट. तो आपने ये इसलिए दिखाया कि ऐसा भी हम वॉशरूम का डिजाइन कर सकते हैं. हाँ एग्जैक्टली. ऑल राइट. और सेम एंटी स्किड फ्लोरिंग आएगा यहाँ पे. हाँ, हर बाथरूम में मैंने देखा कि आपने अलग अलग टाइल्स यूज किया हुआ है. ऑल राइट. अगर मैं स्विचेस की बात करूँ, ये मास्टर बेडरूम है, तो आपने स्विचेस यहाँ पे दिए हुए हैं, आपने स्विचेस यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे भी स्विचेस है, वहाँ ऊपर भी स्विच है. आई थिंक दैट इज फॉर AC, राइट? यस सर. बेड के दोनों ही तरफ उधर भी स्विचेस हैं. एंड वी आर यूजिंग स्नाइडर ब्रांड स्विचेस. ऑल राइट. ओके. तो जैसे आप देख सकते हैं, द होल अपार्टमेंट इफ यू सीक वेरी क्लोजली, यहाँ पे जो एवरेज साइज होता है बनागटा रोड दिस लोकेशन में जी. सो पीपल नॉर्मली अदर बिल्डर्स वेयर दे एम द मैक्सिमम साइज अपार्टमेंट्स, वी स्टार्ट एट दैट साइज. मैंने पहले ही बोला था कि आप इसके अमिताभ बच्चन हो इस एरिया के. करेक्ट सर. ऑल राइट. वेरी गुड. बहुत बड़ा अपार्टमेंट है ये एंड वेरी वेल प्लान. मतलब अगर लाइट ऑफ कर दिया जाए ना तो फिर भी, क्योंकि आपने यहाँ पे शेड्स लगा के रखे हैं बिकॉज पीछे काम चल रहा है. Yes, exactly. बट आई कैन विजुअलाइज कि अगर लाइट ऑफ कर दूं मैं, तब भी एम्पल सनलाइट, नेचुरल लाइट बहुत होगा. कार्डबोर्ड यहाँ पे है सर, इट इज टोटली ब्लॉक्ड अवे. राइट राइट. बहुत बढ़िया. आकाश जी, नाउ वी हैव सीन योर मॉडल अपार्टमेंट और ये सैंपल फ्लैट. अब क्या दिखाने वाले हैं आप? आपको होम थिएटर रूम दिखाते हैं. ये तो मैं भूल गया था, होम थिएटर वाला. राइट. चलिए होम थिएटर पहले देखते हैं एंड देन विल गो एंड सी द एमिनिटीज वाला एरिया. प्लीज सर. सो यहाँ पे आप जो ये वाला ब्लॉक देख रहे हैं ना, अभी हमने ये वाला फ्लैट देखा है. देखिए 2250 वाला फ्लैट देख लिया हमने. नाउ ये जो 2400 स्क्वायर फीट वाला फ्लैट है, उसमें विल ओनली सी दिस पार्ट. दिस इज द होम थिएटर ऑफ 11.6 फीट बाई 25.8 फीट. तो ये वाला ब्लॉक हम देखने वाले हैं.
तो ये हम लोग का होम थिएटर रूम है सर. सो ये ऐसा एंट्री होगा होम थिएटर में. एंड यू कैन सी द साइज एंड द स्पेस ऑफ दिस रूम. एक बार चारों तरफ पहले घूम के दिखाता हूँ, काफी बड़ा है. ऑलराइट. तो जरूरी नहीं है कि इसको एज अ होम थिएटर यूज करें. You can work. We can make it as a full blown office space also. यस, एंड इसको आप एक्चुअली में 2 रूम में डिवाइड कर सकते हैं. Correct. तो अगर किसी ने इसको 2 रूम में डिवाइड आप कर एक दिया, मिडिल से एक आर्टिफिशियल फॉयर बना सकते हैं. राइट With a small doorway on the side. राइट. So you can use it for 2 separate things. ओके, सो देन इन केस यू कन्वर्ट दिस इनटू 2 रूम्स, तो आपके 3 रूम ऐसे और 2 रूम ऐसे प्लस योर सर्वेंट रूम. Yeah. सुपर, बहुत बड़ा है ये. हाँ. क्या कॉस्ट है इसका? So this comes to 2.19 CR. 2.19 CR. ऑलराइट. सो आपके जो यहाँ पे डिफरेंट साइजेस के अपार्टमेंट्स थे, इन सब का कॉस्ट क्या है? Sir, the minimum square footage is 1976 square feet. ओके. और इसका आपका 1.78 CR से शुरू होता है. 1.78 CR से शुरू होता है. और एंड कहाँ पे होता है? एंड होता है 4.2 CR से. 4.2 CR, जो कि आपका ड्यूप्ले पेंट हाउस है. करेक्ट. ऑलराइट. उसमें कितने रूम्स हैं? उसमें आपका 4 BHK होगा सर. ओके. प्लस एक मल्टीमीडिया रूम ऐसा होगा. ऑलराइट. ओके. और वो टॉप फ्लोर में होगा, उसका व्यू तो और Top 2 जबरदस्त floors. होगा. ग्रेट. डुप्लेक्स. इवन हम फर्स्ट फ्लोर में, और इसका भी व्यू बहुत अच्छा है. अब हम कौन से फ्लोर पे चले? 3rd फ्लोर पे चले. 3rd फ्लोर में जहाँ पे हम लोग Amenities अम्यूनिटीज वगैरह है. ऑलराइट, चलिए. ओके, क्योंकि हम लोग इस एरिया में आए, तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है. दिस विल बी द पार्किंग एरिया. तो आपके बेसमेंट में पार्किंग है? बेसमेंट में है, फर्स्ट में, फर्स्ट फ्लोर में है, सेकंड and फ्लोर second floor में भी है, पार्किंग है. और ग्राउंड फ्लोर में आपका विजिटर्स कार पार्क होगा. ऑलराइट. टोटल कितने नंबर ऑफ कार पार्किंग्स हैं यहाँ पे? टोटल यहाँ पे 362 कार पार्क्स है. ओके. एंड आई कैन हियर लॉट्स ऑफ नॉइस. काम चल रहा है. हाँ सर. दिस इज म्यूजिक टू द ईयर्स ऑफ होम बायर्स. यस इट इज. या जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, हाँ. उनको ऐसे आवाजें बहुत पसंद है. अच्छा लगता है प्रोजेक्ट में काम चल रहा है. बस फुल ब्लोन काम चल रहा है सर. जी. वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से जाइए. और काफी बड़ा पार्किंग स्पेस है. आप हाँ. ऐसे आपको 3 मिलेगा. ये आप जो पूरा देख रहे हैं यहाँ पे, हाँ. ये पूरा चिल्ड्रंस प्ले एरिया आएगा 3rd फ्लोर में. अच्छा, ये पूरा कंप्लीट एरिया. एंड यू कैन आल्सो एंड सी दिस इज ओपन टू स्काई. yes. One more thing which you can notice over here is आप वॉल देख सकते हैं बाहर का एक्सटीरियर. जी. Just for the children it is on a higher level ऑलराइट. for their safety. ओके. एंड यहाँ पे वाटर प्रूफिंग का काम भी चल रहा है. हाँ सर. So the whole area what you're seeing over here, this on the 3rd floor, this is the whole area is the party hall. सो वी आर एट द 3rd फ्लोर. Correct. राइट. सो ये पूरा पार्टी हॉल है. हाँ सर. और यहाँ पे अभी हमने आपको दूसरे तरफ से दिखाया था, ये किड्स प्ले एरिया है. करेक्ट सर. एंड यहाँ पे वो रबर मैटिंग सब कुछ हो गया, जैसे आप अपने प्रोजेक्ट में करते हैं ऑलरेडी. ओके. स्विमिंग पूल वाला एरिया कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड साइड. ये वाला जो पूरा सेक्शन है, ये आपका स्विमिंग पूल वाला एरिया. हाँ सर. विच मीन्स कि जो लेक है वो इसी तरफ है. हाँ. ऑलराइट. सो अभी इसमें क्या काम चल रहा है? अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फ्लोरिंग वगैरह इसके बाद होगा विद द टाइल्स एंड एवरीथिंग. ओके. और सामने जो देख रहे हैं जी. वो वहाँ पे आपका देख रहा है ना, वहाँ से ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का कुछ दिख रहा है? राइट. हाँ. वो दैट इज द किड्स स्विमिंग पूल आल्सो. ओके. हाँ. ऑलराइट. और जिम स्पेस ये सब भी इसी फ्लोर पे होगा सारा कुछ. एवरीथिंग विल बी डन ओवर हियर. देयर इज अ स्क्वॉश कोर्ट, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, हेल्थ क्लब, सब 3rd फ्लोर में आएगा. ऑलराइट. इससे पहले हम लोग अंदर में थे, अब बाहर की तरफ आ गए. सो दिस इज द एंटायर पूल एरिया. अब Yes. यहाँ से और क्लियरली दिख रहा है. दिस इज अ पूल डेक एरिया सराउंडिंग. ये पूरा पूल लेक एरिया है, यहाँ से वहाँ तक. ऑलराइट. एंड लेक वहाँ पे है. करेक्ट. ओके. सुपर. काफ़ी बड़ा है ये. यस सर. ये एडल्ट पूल है, वहाँ पे किड्स पूल है. राइट. यस सर. ऑलराइट. आइए वो आपके बैडमिंटन कोर्ट की तरफ चले. सो दिस इज द बैडमिंटन कोर्ट व्हिच यू आर सीइंग ओवर हियर. मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया होगा, बट ये डबल हाइटेड है. सुपर. सो ये हमारा पूरा बैडमिंटन कोर्ट है. एंड दिस इज अ फुल साइज बैडमिंटन फुल कोर्ट. साइज बैडमिंटन कोर्ट. ऑलराइट. एंड स्क्वैश रूम कहाँ पे है? ये सब भी, और कार्ड्स रूम, बोर्ड गेम रूम, Yes. ये सब सारा कुछ यहाँ पे है. ऑलराइट. जब ये बन जाएगा तब मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा. तो अभी तो बन ही रहा है. हाँ. सो ये वाला पोर्शन जो है वो स्क्वैश रूम ये स्क्वॉश कोर्ट होगा. काफ़ी शोर है क्योंकि काम चल रहा है यहाँ पे. यहाँ पे फुल फ्लेश काम चल रहा है. हाँ, तो ऊपर से आप नीचे भी देख सकते हैं, नीचे भी सिटिंग एरिया. करेक्ट. हाँ ऐसा ही. जी. ये देखिए.
सो ये जो पूरा सेक्शन है हाँ। ये स्क्वैश रूम है आपका। Yeah, exactly. And इससे पहले जो हम बना रहे थे वीडियो ऊपर से वहाँ पे ग्लास होगा। ऊपर भी ग्लास होगा, ऊपर से भी देख सकते हैं आप, हाँ, नीचे इधर से भी देख ग्लास सकते होगा और एंट्रेंस होगा यहाँ पे। हैं। ऑलराइट, यहाँ पे मुझे रैंप दिख रहा है एक, और मुझे यहाँ पे भी एक रैंप दिख रहा है। तो एक एंट्री के लिए रैंप होगा और एक एग्जिट के लिए। ओके। और जो हमारा सेकंड फ्लोर है पार्किंग का, फर्स्ट फ्लोर है, और जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है और जो हमारा बेसमेंट है, ये रैंप के थ्रू भी इंटरकनेक्टेड होगा। करेक्ट। ऑलराइट। सो आकाश जी, नाउ वी हैव सीन योर एंटायर प्रोजेक्ट। हमने मेन एंट्री देख लिया, वी हैव अंडरस्टूड द लोकेशन की क्या लोकेशन है, क्यों प्राइम है ये लोकेशन इतना। अपार्टमेंट के साइज़ देख लिए हैं आपके, बहुत बड़े बड़े रूम साइज़ हैं इसमें आपका। हमने पार्किंग एरिया देख लिया, हमने एम्यूनिटीज़ देख लिया। दो एम्यूनिटीज़ आर नॉट रेडी, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि एम्यूनिटीज़ कैसा दिखेगा। तो वो एम्यूनिटीज़ वाला एरिया भी हमने देख लिया। आपका ग्रीन एरिया जहाँ पे बच्चे खेलेंगे वो सब एरिया भी देख लिया, पूल एरिया भी देख लिया। नाउ ऐसा कुछ रह गया जो मैंने आपसे नहीं पूछा और आप बताना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं? एक चीज़ बताना था कि दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज आवर फर्स्ट फास्टेस्ट सेलिंग प्रोजेक्ट इन बैंगलोर। ओके। तो मई से लेकर अभी तक अराउंड 50% हैव बीन सोल्ड आउट। ऑलराइट। सो ओनली 50% इज रिमेनिंग। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, रूम साइजेस ही इतने बड़े हैं। Yeah. ऐसा The बाकी location, प्रोजेक्ट्स में yeah, जी। kind of amenities which we are providing you, the clients, I mean. So it will maybe in the next 4 or 5 months again it will be sold out. ऑलराइट। अगर यहाँ पे बायर्स को दो, वी हैव शोन द लेआउट प्लान, इफ एनी ऑफ द बायर्स, इंटरेस्टेड बायर्स, दे वांट टू विजिट द साइट एंड any they want brochures or any other information which we might have not covered in the video, तो वो कैसे ले सकते हैं? आपका स्क्रीन पे जो नंबर दिखा रहा है, you will be getting each and every details from that. Alright, so you mean to say कि स्क्रीन में जो नंबर है उस नंबर पे they can call up for the brochure or for the price or the site visit, for everything they can call on this number. Alright, thank you so much इतने डिटेल में सब कुछ बताने के लिए. It was a pleasure meeting you. Same here, sir. Thank you. Thank you.